A very good morning to all of you. This is Abhilasha Narda, your political science teacher. So students, today we all are going to continue our next topic of your chapter, Challenges of Nation Building. And today's topic is Mahatma Gandhi's sacrifice. In our last class, we discussed about the consequences of the partition. What were the consequences of partition and how it affected our nation. ठीक है, how it affected our our ancestors, or you can say the people, how they suffered, right? So if you we will read about one of the finest leader of the 20th century, Mahatma Gandhi. Okay, he is the father of our nation also. So as you all know, partition was a challenge in our, from the earlier topics we get to know about it. Partition was such a great challenge for us even after we got the independence, but struggle was more after that independence. That trauma was so challenging, so difficult for the people. मतलब जितने लोगों की जान कॉलोनाइजेशन के टाइम पे नहीं गई थी, उतने लोगों की जो जान है वो, उनकी जो डेथ है वो पार्टीशन के टाइम पे हुई थी. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली लाइक 10 lakh people got killed. ठीक है, 80 lakhs, approximately 80 lakhs people lost. So matlab so much trauma was there. People faced so many challenges and difficulties. Okay, so now we will talk about Mahatma Gandhi's sacrifice. Now what he did and what was his contribution. As you all know, in from your earlier classes, you get to know how Mahatma Gandhi for before independence, approximately for 30 to 40 years, he struggled for our independence. Okay, and partition was such a challenge for him. As you all know कि like महात्मा गांधी जी ने 30-40 years तक जो struggle किया था independence के साथ, independence के लिए, Mahatma Gandhi and his followers, and even many of our leaders, many of the national freedom fighters, ठीक है, उन्होंने स्ट्रगल किया था. एंड महात्मा गांधी के जो प्रिंसिपल्स थे, प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस एंड अहिंसा, यू कैन से नॉन वायलेंस और अहिंसा और एंड सत्याग्रह की नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस, सत्याग्रह के जो इनके प्रिंसिपल्स थे, जो उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, ठीक है, काफी सेशंस के टाइम पे, मतलब उन्होंने नॉन वायलेंस अपने प्रिंसिपल्स को जो है वो बना के रखा था. बट एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, व्हेन वी गॉट द इंडिपेंडेंस, बट पार्टीशन हो चुका था. एट दैट टाइम जो ये स्कल्पचर था हमारा अहिंसा का, जो गांधी जी ने फॉर्म किया था, स्कल्पचर बनाया था अहिंसा का, प्लस नॉन वायलेंट जो हमारी इनहेरिटेंस थी नॉन वायलेंस की, वो लॉस्ट हो चुकी थी एट दैट टाइम ऑफ पार्टीशन. ठीक है, पीपल गॉट इन्वॉल्व इन सो मेनी राइट्स, सो मेनी कम्युनल राइट्स. दे गॉट लाइक खुद को अंदर से, उनको क्या है आपसी, मतलब कि अंदर से वो बहुत ज्यादा क्या हो चुके थे, टूट चुके थे. लाइक रिवेंज की फीलिंग थी उनके अंदर, राइट? सो महात्मा गांधी का जो सेक्रीफाइस था, ठीक है, वो क्या सेक्रीफाइस रहा है while getting independence or after independence. Basically we will talk about after independence ki what he did. So, as you all know, we started this chapter from a statement given by Mahatma Gandhi, which is already mentioned in your book also. Tomorrow we shall be free from the slavery of the British domination, but at midnight India will be partitioned. Tomorrow will thus be a day of rejoicing as well as mourning. ठीक है?
उन्होंने कहा कि हमें 14 अगस्त 1947 की मिडनाइट में, ठीक है, इवनिंग के टाइम पे आप बोल सकते हो, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि हमें कल आजादी मिल जाएगी, ठीक है, हम जो ब्रिटिश डोमिनेशन था, हमारा जो कॉलोनियल रूल चला है वो खत्म हो जाएगा, बट साथ में ही आज रात को क्या होगा, इंडिया का पार्टीशन हो जाएगा, ठीक है, इंडिया गॉट डिवाइडेड, इंडिया का पार्टीशन हो जाएगा। जो कल का जो दिन है वो हमारे लिए खुशी का दिन भी है, और साथ में लाइक यू कैन से कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो जैसे हम फील करते हैं, ठीक है, वी फील सैड एंड हमें बहुत दुख होता है, जस्ट लाइक दैट हमें खुशी के साथ दुख भी रहेगा। So, on the 15th August 1947, Mahatma Gandhi did not participate in any of the Independence Day celebration. Many leaders, whole nation was celebrating, like mostly at all the provinces, all the leaders, mostly all the organizations, they were celebrating the Independence Day कि हमें independence मिल चुकी है, but Mahatma Gandhi did not participate. He did not participate. Why he did not participate? Because उन्हें ये डर था, like कि हमें इंडिपेंडेंस तो मिल गई है, बट जो ये राइट्स हो रहे हैं, ठीक है, जो राइट स्टार्ट हो चुके थे एक्चुअली में, जब ये डिसीजन लिया गया था इंडिया और पाकिस्तान का, इंडिया और का डिवीजन हो जाएगा, पार्टीशन हो जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान दो डिफरेंट नेशंस बन जाएंगे, तो उसके बाद से जो मुस्लिम लीग है या फिर मुस्लिम्स और हिंदूज और मुस्लिम्स में काफी कम्युनल राइट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके थे, तो उन्हें ये डर था कि अभी तो हमें इंडिपेंडेंस मिल गई है, बट जो ये कम्युनल राइट्स चल रहे हैं, ठीक है, जो हिंदू और मुस्लिम के जो बीच में डिफरेंसेस अराइज हो चुके हैं, वो आगे जाके हमें फिर से स्लेव बना देंगे, ठीक है, फिर से हमें डिवाइड कर देंगे कि जो इतना टाइम हमने स्ट्रगल किया, मतलब लाइक 200 इयर्स तक वी स्ट्रगल्ड, इवन उससे पहले भी मुस्लिम्स लाइक we were slaves, just like slaves ही थे, but ब्रिटिशर्स ने क्या है 200 years तक हमें स्लेव बना के रखा, हमने उसके लिए इतना बड़ा स्ट्रगल किया, we fought for a very long time, and अब जब हमें इंडिपेंडेंस मिली है, now we are doing what we are doing, we are like fighting with each other, so his वो अपने प्रिंसिपल्स के साथ रहे, ठीक है, अब बहुत जो हाईली प्रिंसिपल पर्सन होता है, मोस्ट ऑफ द पर्सन, ठीक है, मोस्ट ऑफ द कम्युनिटी क्रिटिसाइज दैट पर्सन जो हाईली प्रिंसिपल्ड होता है, बिकॉज एट द बिगिनिंग सबको लगता है कि ये जो इसके जो प्रिंसिपल्स हैं बेकार है, मतलब कि हमें इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा, बट इफ वी लुक एट द लॉन्ग रन, ठीक है, कि लॉन्ग टर्म में जो हाई प्रिंसिपल पर्सन्स, जो मोस्टली जो हाई प्रिंसिपल पर्सन्स के जो आइडियोलॉजीज होते हैं काफी अच्छे होते हैं, तो महात्मा गांधी को भी काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि व्हाई ही इज नॉट celebrating our independence day, ठीक है, he was one of the prominent leader, and हम उसके उनके रास्ते पे भी चले, now he is not celebrating independence day with us, ठीक है, तो उनका जो मेन फोकस था उस टाइम पे, मेन फोकस था, दे वर फोकसिंग ऑन यूनिटी ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, कि हिंदूज और मुस्लिम्स की यूनिटी पे उनका फोकस था, कि हमें हिंदूज और मुस्लिम्स को यूनाइट करके रहना है, जो हमारा ये डाइवर्स कल्चर है, ऐसा तो नहीं है कि अभी बना है हमारा ये डाइवर्स कल्चर, या 200 साल पहले या 500 साल पहले, ये तो बहुत पुराना है, लाइक 2000 इयर्स अगो, अगर 2000 साल पहले भी अगर हम बात करते हैं, तो हमारा जो नेशन है बहुत डाइवर्स ही हुआ करता था, ठीक है, हम सब हमेशा से मिलजुल के रहते थे, इंडिया की जो ये इंडिया का एक आप बोल सकते हो आइडियोलॉजी बोल लो, या फिर मोटो बोल लो, या फिर उसका कल्चर बोल लो, ट्रेडिशन बोल लो, अतिथि देवो भव, बहुत जगह आप सुना होगा आपने ये
स्टेटमेंट अतिथि देवो भव, ठीक है, ये इंडिया का कल्चर है, ट्रेडिशन है, नॉट फ्रॉम टुडे, नॉट फ्रॉम द लास्ट 50 इयर्स या 200 इयर्स, बट फ्रॉम द लास्ट 2000 इयर्स। हाँ, ऑब्वियसली बहुत सारे हमें उसकी वजह से चैलेंजेस और डिफिकल्टीज फेस करने को मिली है, ठीक है, बट ये जो हमारा किसी का जो एक कॉमन नेचर होता है, ठीक है, जो इंटरनल नेचर है वो चेंज नहीं हो सकता है। तो हमारा जो प्रिंसिपल है, अपनी डाइवर्सिटी में यूनिटी को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। उनका इसलिए उन्होंने किसी भी इंडिपेंडेंस डे पे क्या है, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया, पार्टिसिपेट नहीं किया। एंड नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट वाज वन ऑफ द मेन कॉज? At that time he was in Kolkata, ठीक है, 3 provinces were highly affected with the partition of India and Pakistan, ठीक है, Kolkata provinces, like you can say Bengal provinces, Punjab, ठीक है, provinces, and आपका जो province था provinces of like at that time Bengal provinces, Punjab provinces, and some parts Lahore, obviously वो at that time वो पाकिस्तान का पार्ट हो चुका था, बट जो कुछ जम्मू एंड कश्मीर का प्रोविंस था वो बहुत ज्यादा क्या हो चुका था, हाईली अफेक्टेड एरिया था वो, ठीक है। तो एट दैट टाइम महात्मा गांधी, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, महात्मा गांधी वाज इन कोलकाता एंड इन द एरियाज व्हिच वर टॉर्न बाय ग्रिसम राइट्स, ठीक है, बहुत ही जो बोलते हैं ना कि वायलेंट जो राइट्स थे, ठीक है, ऐसे एरियाज में थे जहाँ पे बहुत ज्यादा वायलेंट राइट्स जो है छिड़ चुके थे बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम, हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में बहुत सारे वायलेंट राइट्स राइज हो चुके थे। ही वाज एट दैट टाइम एंड बिफोर द इंडिपेंडेंस ही वाज देयर, एंड वो जो आपके कम्युनल राइट्स थे ऑलरेडी स्प्रेड हो चुका था, वायलेंस स्प्रेड हो चुका था, एंड ही वांटेड व्हाट महात्मा गांधी वांटेड, ही वांटेड टू स्टॉप दैट राइट्स, ठीक है। मुस्लिम लीग ने तो ऑलरेडी जो आप बोल सकते हो जंग होती है ना, he already started compelled by direct action day, उन्होंने कंपेल कर दिया था ऑलरेडी कि हम हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में एक अकॉर्डिंग टू देम जो वॉर होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, दे ऑलरेडी स्टार्टेड दैट मुस्लिम लीग। तो ही वांटेड टू स्टॉप दैट, और कोलकाता जब इंडिपेंडेंस मिला तो उस टाइम पे जो राइट्स थे एज कंपेयर टू कंपेयर टू पंजाब प्रोविंसेस एंड दिल्ली प्रोविंसेस एंड मेनी अदर पार्ट्स, जितने भी और भी अदर पार्ट्स में राइट्स हो रहे थे, उसके कंपैरिजन में काफी कम हो गया था बिकॉज ऑफ महात्मा गांधी। He was very sad, like he was saddened by the communal violence and disheartened that the principles of ahimsa and satyagraha had failed to bind the people in troubled times. कि जब सबसे ज्यादा हमें जरूरत थी कि हमें अहिंसा और नॉन वायलेंट रहने की, ठीक है, हमें अहिंसा और सत्या के पाथ को फॉलो करने की, ठीक है, इतने 50 इयर्स से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, 50 इयर्स तक हमने लाइक बहुत ही नॉन वायलेंट रहे, हमने अहिंसा का पाथ चूज किया, बट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एट द टाइम जब हमारी कंट्री जो है पार्टीशन हो चुकी थी, इस टाइम पे क्या हुआ, हम लोगों को यूनाइट नहीं कर पाए विद दिस सत्याग्रह एंड अहिंसा। ही वाज वेरी सैड बाय दिस, ठीक है, ही वाज वेरी सैड बाय दिस सिचुएशन। ओके, so now what happened, his presence in Kolkata greatly improved the situation, and the coming of independence was celebrated in a spirit of communal harmony with joyous dancing in the streets. We started this chapter with this photograph कि पार्टीशन हो रहा था, बट फिर भी बहुत सारे लोग जो थे खुश थे, और बहुत सारे लोग जो मुस्लिम्स थे और हिंदूज थे दोनों खुश थे कि हाँ हमें फाइनली इंडिपेंडेंस मिल गई है, एंड दे सेलिब्रेटेड दिस टुगेदर। और इसका वन ऑफ द मेन कॉज आप बोल सकते हो कि महात्मा गांधी की जो प्रेयर्स थी, ठीक है, पब्लिक स्पीचेस थे, पब्लिक प्रेयर्स थे, तो
इससे काफी इम्प्रूव्ड हुई थी कम्युनल वायलेंस की सिचुएशन कोलकाता में, ठीक है, एज कम्पेयर टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बंगाल एंड द प्रोविंसेस ऑफ पंजाब। कोलकाता का सिचुएशन काफी इम्प्रूव्ड था, बेटर था। गांधी जी की जो प्रेयर्स थी, इट अट्रैक्टेड लार्ज क्राउड्स, ठीक है, बट ये जो प्रेयर्स थी काफी टाइम, ये जो राइट्स थे, जो कम्युनल हार्मनी थी काफी कम समय तक रही, ठीक है, बहुत दैट दिस वाज शॉर्ट लिव्ड एज राइट्स बिटवीन Hindus and Muslims erupted once again when Gandhiji had to resort to a fast to bring peace. And finally, prayers और speeches और जब उनके प्रिंसिपल्स काम नहीं आ रहे थे, then he had to resort to a fast, ठीक है, फास्ट में चले गए कि जिससे शांति आ सके, ठीक है। फिर से क्या होने लग गए, मुस्लिम्स और हिंदूज के बीच में फिर से कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होने लग गए थे। तो फाइनली गांधी जी को क्या है, फास्ट पे जाना पड़ा, ठीक है, आप बोल सकते हो भूख हड़ताल पे जाना पड़ा, ठीक है। तो ही फॉलो दैट पाथ्स ऑफ फास्ट और नॉन वायलेंट मेथड्स, अहिंसा, ठीक है, नॉन वायलेंट मेथड्स और नॉन violent resistance methods, right? So now what happened after Kolkata? What happened कि देखा कि ओके कोलकाता में फिर भी बेटर है सिचुएशन, तो मे बी जो हम दिल्ली इम्पोर्टेंट पार्ट है इंडिया का, तो गांधी जी वहां ही मूव्ड टू दिल्ली वेयर लार्ज स्केल वायलेंस हैड इरप्टेड। बहुत ज्यादा वायलेंस जो है इरप्ट हो चुका था, सडनली एक्सप्लोड हो चुका था। ही हैड सम कंसर्न्स, क्या क्या कंसर्न्स थे? ही हैड द कंसर्न कि मुस्लिम शुड बी अलाउड टू स्टे इन इंडिया विद डिग्निटी, ठीक है, इक्वल राइट्स के साथ, डिग्निटी के साथ हमें मुस्लिम्स को इंडिया में रहने देना चाहिए, ठीक है। इट वाज वन ऑफ हिज मेन कंसर्न कि ओके पाकिस्तान में अगर इंडियंस के साथ, हिंदूज के साथ अगर बुरा हो रहा है तो हमें उस बात को चूज नहीं करना है, वी हैव टू गिव देम। ऑब्वियसली फीलिंग आएगी, रिवेंज की फीलिंग आएगी, बट हिज मेन कंसर्न वाज कि हम हमेशा से हमने हर एक सिटी, मतलब हर एक पर्सन को हमने वेलकम किया है, ठीक है, हमने गेस्ट को हमेशा से वेलकम किया है, तो मुस्लिम्स हमारे कंट्री में रह सकते हैं, ये उनकी भी कंट्री है, दे आर लिविंग हियर फ्रॉम लाइक मेनी सेंचुरीज, we should allow them to stay in India with dignity and with equal rights citizens, ठीक है, minority है but we have to give them rights। He wanted to improve the relation between India and Pakistan, कि इंडिया और पाकिस्तान का जो रिलेशन है इससे काफी खराब हो जाएगा इफ अगर हम मुस्लिम्स को, ऑलरेडी खराब हुआ था बिकॉज जो मुस्लिम्स थे, ठीक है, पाकिस्तान था कि पाकिस्तान स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर जम्मू एंड कश्मीर, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स तो इवन आज तक चल रहे हैं, राइट? तो he wanted to improve the relation between India and Pakistan कि in future हमारे relations काफी खराब हो जाएंगे अगर ये violence चलते रहे एंड हमने मुस्लिम्स को हमारे कंट्री में रहने नहीं दिया तो, ठीक है। एंड नॉट ओनली द रिलेशन, उनको उनके अंदर बोला जाता है कि काफी ह्यूमैनिटी थी कि हमें उन्हें रहने देना चाहिए। हम वी इंडियंस आर लाइक वेरी हम्बल, वेरी काइंड, तो वी शुड गिव देम, लाइक बोलते ना, पनाह देनी चाहिए। अनहैप्पी विद द इंडियन गवर्नमेंट्स। नाउ एट दैट टाइम व्हाट हैपेंड, जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स का जो फाइनेंशियल यू कैन से फंड था अप्रोक्सीमेटली 400 करोड़ तक का था, एंड उसमें से ये डिसाइड किया गया था कि 75 करोड़, ठीक है, 75 करोड़ जो हैं वो पाकिस्तान को दिया जाएगा फॉर इट्स डेवलपमेंट। बट जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गई थी, तो इंडियन गवर्नमेंट का जो डिसीजन था, ठीक है, कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को लेके जो कमिटमेंट हुई थी वो सही नहीं था। उन्होंने बोला कि अब उन्होंने क्या कर दिया है, हम पैसे देने को रेडी हैं, बट आपने तो जम्मू एंड कश्मीर की डिमांड करनी स्टार्ट कर दिया, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स आपने स्टार्ट कर दिया। तो वो इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि इंडियन गवर्नमेंट ये डिसीजन ले रही है कि हमें पाकिस्तान को क्या है, हम पैसे नहीं देंगे। तो ही वॉज वेरी अनहैप्पी।
तो ये कंसर्न्स थे कि, और वो चाहते थे कि ये सारी चीजें क्या हो सके, फुलफिल हो सके पीसफुली। सो व्हाट हैपेंड, ठीक है, उसकी उनकी प्रेइंग्स, उनकी मीटिंग्स जो है काम नहीं आ रही थी। देन व्हाट ही हैड डन, he went he undertook out to be his he undertook to fast, ठीक है, उन्होंने भूख हड़ताल कर दी, आम मतलब कि आमरण की, जब तक मैं बोलता ना, जब तक मैं जिंदा हूं मैं फास्ट करूंगा, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। सो हिज फास्ट हैड ए लाइक यू कैन से अंडरटुक व्हाट टर्न्ड आउट टू बी हिज लास्ट फास्ट इन जनवरी 1948। जनवरी 1948 इनका असैसिनेशन हो गया था, 30 जनवरी 1948। उस दिन तक उन्होंने क्या किया था, फास्ट टिल डेथ, ठीक है, डेथ तक उन्होंने अपनी फास्ट कर लिया था, ठीक है, काफी इफेक्ट पड़ा था। तो इनका जो फास्ट है, हिज फास्ट हैड ए ड्रामेटिक इफेक्ट इन दिल्ली टू। हमने देखा लाइक कोलकाता में भी जो फास्ट किया था उसके काफी इफेक्ट्स रहे थे, जस्ट लाइक दैट इन दिल्ली आल्सो हिज फास्ट हैड ए ड्रामेटिक इफेक्ट, बहुत ही लाइक बोलते ना मैजिकल इफेक्ट रहा। कम्युनल टेंशंस एंड वायलेंस रिड्यूस, कम्युनल टेंशंस जो थी, वायलेंस थे, कंपैरेटिवली काफी रिड्यूस हो चुके थे। Muslims of Delhi and surrounding areas could safely return to the homes. They finally live कि बोलते हैं ना चैन की सांस ले सक रहे थे, ठीक है, मुस्लिम्स जो थे, जो दिल्ली में रह रहे थे या सराउंडिंग एरियाज में रह रहे थे, they safely returned to their homes. And finally the government of India also agreed to give Pakistan its dues की जो भी कमिटमेंट हुई थी, फाइनेंशियल कमिटमेंट, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 75 करोड़ की हुई थी। गो थ्रू द फिगर्स, ठीक है, रिसर्च करना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनली क्या किया, अग्री भी कर लिया कि ओके वी विल गिव पाकिस्तान इट्स ड्यू, फाइनेंशियल कमिटमेंट को हम क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। तो ये कुछ कंसर्न्स थे और उनके फास्ट से काफी इफेक्टिव भी रहा जो ये टेंशंस वगैरह जो है रिड्यूस हुई, ठीक है, मुस्लिम्स को अपने घर भेजा गया एंड पाकिस्तान को अपने जो ड्यूज थे वो भी पे किए गए, इंडियन गवर्नमेंट ने पे भी किए, ठीक है। बट ऑब्वियसली महात्मा गांधीज एक्शंस वर नॉट लाइक्ड बाय ऑल, ठीक है, बहुत सारे लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं और बहुत सारे लोग उस टाइम पे भी पसंद नहीं करते थे। मेन रीजन वाई, क्यों नहीं पसंद करते थे, लाइक ही फॉलोड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह का रास्ता अपनाया उन्होंने, ठीक है, उनकी वजह से बोला जाता है कि आजादी भी आई है, ठीक है, कि तो बहुत सारे लोग उन्हें क्यों नहीं वो तो कम्युनल राइट्स को खत्म ही करना चाहते थे ना। तो मेन रीजन था कि उन्हें पसंद क्यों नहीं करते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट इन बोथ द कम्युनिटीज ब्लेम्ड हिम फॉर देयर कंडीशन, कि आज की हमारी जो कंडीशन है, ठीक है, वी गॉट पार्टीशन, हमारा जो पार्टीशन हुआ है वो आपके वजह से हुआ है, हमें जो इंडिपेंडेंस, इतनी लेट इंडिपेंडेंस मिली है वो आपके वजह से ही मिली है। जो आज हमारी कंडीशन है ना, इनके कुछ एक्सट्रीमिस्ट थे। एक्सट्रीमिस्ट क्या होते हैं, जो those persons who have the quality of extreme measures views, की extreme ही views है कि नहीं उन्होंने ऐसा किया तो हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो एक्सट्रीमिस्ट कम्युनिटीज, दोनों ही हिंदूज और मुस्लिम कम्युनिटीज में जो एक्सट्रीमिस्ट थे, उन्होंने जो प्रेजेंट उनकी जो प्रेजेंट डे कंडीशन थी उसके लिए महात्मा गांधी को ब्लेम किया। ही He was also disliked by those who wanted Hindus to take revenge, ठीक है, कुछ हिंदूज जो थे they wanted to take revenge और they wanted India to become a country for the Hindus, just like पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान क्या था, टेरिटरी फॉर country for Muslim, ठीक है, just like that some Hindus also wanted कि हमारा जो इंडिया होगा, हमारी जो कंट्री होगी वो हिंदूज के लिए ही होगी। He wanted to take the revenge, उन्हें भी वो काफी पसंद नहीं थे, महात्मा गांधी पसंद नहीं थे। They accused गांधीजी of acting in the interest of the Muslims and Pakistan, accuse कर रहे थे कि वहां पे तो हमारे जो भाई हैं, ठीक है, हमारे जो ब्रदर्स हैं, हमारे उनके साथ बहुत ही बुरा क्या हो रहा है,
लाइक इल ट्रीट किया जा रहा है उनको, ठीक है। बट फिर भी गांधी जी मुस्लिम और पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे, अक्यूज कर रहे थे इस चीज को लेके। तो ऐसे लोग क्या कर रहे थे, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थे, ठीक है, महात्मा गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं किया करते थे। एंड mainly they wanted to take revenge, and what they wanted to do, they wanted to they wanted freedom, ठीक है, freedom and a territory for Hindu only, just like Pakistan, they wanted a country for Hindus जहाँ पे Hindus रहे। But what was Gandhi ji's point of view? यहाँ पे गांधी जी का point of view क्या था? People were misguided. He thought people were misguided, people were misleaded, and he was convinced that any attempt to make India into a country only for the Hindus would destroy India. उनका मानना था कि अगर हमने कोई भी अटेम्प्ट ऐसा किया जिससे कि मतलब कि वी वांट ऐसा अटेम्प्ट किया कि हमें इंडिया को एक हिंदू नेशन ही बनाना है, तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो बहुत बुरे होंगे। इट विल परमानेंटली डिस्ट्रॉय इंडिया, इंडिया को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, कर देगा, अगर ऐसा कोई भी अटेम्प्ट चूज किया या ऐसा कोई भी पाथ चूज किया। तो उनका मानना था जो लोग हैं उन्हें मिसगाइड किया गया है, मिसलीड किया गया है, और वो उन्हें कन्विंस कर रहा था, वो उन्हें कन्विंस कर रहे थे, महात्मा गांधी उन्हें कन्विंस कर रहे थे कि अगर हमने हिंदूज के लिए नेशन की डिमांड की तो इट विल डिस्ट्रॉय इंडिया फॉर एवर, ठीक है। सेकेंडली, his steadfast pursuit of Hindu-Muslim unity provoked Hindu extremists so much that they made several attempts to assassinate Gandhiji. क्या हुआ? अब उनके जो वो जो हिंदूज और मुस्लिम की यूनिटी के लिए वो क्या कर रहे थे, गांधी जी क्या कर रहे थे, काफी लॉयल बन रहे थे कि वो क्यों हिंदूज और मुस्लिम्स को क्या कर रहे थे, क्या यूनाइट करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे काफी कुछ हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जो थे उन्होंने काफी अटेम्प्ट्स किए थे गांधी जी को असैसिनेट करने के लिए, मारने के लिए। एंड ऑल्दो असैसिनेट मतलब कि उन्हें डर नहीं था, ही वॉज नॉट स्केयर्ड एट ऑल, और उन्होंने इवन प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, कि रिफ्यूज कर दिया था कि नहीं, मुझे आर्म्स प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, आई एम सेफ एंड आई एम नॉट स्केयर्ड। So finally he refused it. But what happened, one of the extremists finally on 30th January 1948, the name of the extremist was Nathuram Vinayak Godse. He walked up to Gandhiji during his evening prayer in Delhi and fired 3 bullets at him, killing him instantly. उनके ऊपर 3 गोलियां चलाई और ऑन द स्पॉट गांधी जी की क्या हो गई, डेथ हो गई। एंड दस एंडेड ए लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल फॉर ट्रुथ, नॉन वायलेंस एंड जस्टिस एंड टॉलरेंस। जो फाइनली जो गांधी जी का ट्रुथ को लेके, नॉन वायलेंस, जस्टिस एंड टॉलरेंस को लेके जो स्ट्रगल था वो एंड हो चुका था, ठीक है। गांधी जी की डेथ हो गई थी फाइनली, he got assassinated by Nathuram Vinayak Godse, one of the extremists, on 30th January 1948, ठीक है। बट इनकी डेथ के बाद, गांधी जी की डेथ एक मैजिकल इफेक्ट लेकर आई थी। Gandhiji's death had an almost magical effect on the communal situation in the country. एकदम से जो कम्युनल सिचुएशन अराइज जो हुई भी थी वो काफी कम हो चुकी थी। पार्टीशन रिलेटेड एंगर एंड वायलेंस सडनली सब्सिडाइज, ठीक है। सडनली व्हाट हैपेंड आफ्टर हिज डेथ, धीरे धीरे क्या हुआ, जो वायलेंस थे वो कम होने लग गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रैक डाउन ऑन ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज स्प्रेडिंग कम्युनल हेट्रेड, ठीक है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उस टाइम पे
उन्होंने ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जो कम्युनल हेट्रेड को, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को वो फाइंड आउट कर रहे थे, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को वो बैन करने लग गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लाइक आरएसएस का नाम सुना होगा। ऑर्गेनाइजेशंस लाइक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आरएसएस, वर बैंड फॉर सम टाइम। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिनका जो मेन मोटो था हिंदुइज्म का था, हिंदू नेशन को बिल्ड करने का था, जो केवी हेडगेवर ने 1925 में इसको फाउंड किया था। एंड द हेडक्वार्टर्स ऑफ आरएसएस इज इन नागपुर, और अभी के जो मेन चीफ हैं मोहन भगत है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो आरएसएस आज के टाइम पे भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है हिंदूज की अगर बात करें तो हिंदूज फॉर हिंदुइज्म। तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को भी कुछ टाइम के लिए बैन कर दिया गया था। जो कम्युनल पॉलिटिक्स चल रही थी, चाहे वो मुस्लिम लीग की हो, चाहे वो आरएसएस की हो, या कोई भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन की हो, उनकी जो अपील थी वो धीरे धीरे लूज करने लग गई थी। एंड फाइनली जो कम्युनल राइट्स थे वो क्या हो चुके थे कंट्री में, डिक्रीज हो गए थे। So class, this is all about this topic, Mahatma Gandhi's sacrifice. ठीक है, if we analyze this topic, like we should get to know many persons got guilt after his assassination. ठीक है, after the assassination of Mahatma Gandhi, and finally जो उनकी प्रेयर्स थी, उनके जो फिलोसफीज थी, ठीक है, उनकी डेथ हो गई थी, बट उनके फिलोसफीज की, उनके प्रिंसिपल्स की डेथ नहीं हुई थी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। गो थ्रू द टॉपिक, and if you face any problem, do let me know in my next class. Until then, keep learning, stay safe, bye bye, take care of yourself.